Hello students, welcome in YouTube channel that is Biology with Deshmukh Madam. So in this lecture we are talking about the deviation from Mendel's findings. So what is this? Actually before this lecture, so we are talking about the monohybrid and dihybrid cross. And with the help of this monohybrid and dihybrid, we are explaining the three laws. So that is the law of dominancy, law of segregation and law of independent assortment. Okay, so but in that some drawbacks was there because lot of scientists after the Mendel, lot of scientists they work on this, that is the experiment of Mendel. So they observe that so lot of drawback is present because what happened in pea plants, only the contrasting character are present. What is the contrasting character? That is the opposite character. Yes, but whenever other scientists they taken the another example, so in that case what happened here, the that is a contrast, not only the contrasting character but medium character is also present. Okay, so that's why the problem is created. And so due to this, so in that that is a Mendel's law, some correction is there, and after that there is a formation of some new finding, so which is called as deviation from Mendel's finding. Means these are the deviation which are formed from the Mendel's finding. जो मेंडल ने बताए थे उसमें ही करेक्शन करके जो डेविएशन दिए हैं उसे कहा है न्यू मेंडलिज्म. क्या कहा है उसे? न्यू मेंडलिज्म. Yes, it is called as neo-Mendelism. And in that neo-Mendelism, so here explain that, so these deviation from the Mendel's means actually the base is Mendel's, but here some correction was there, and these correction, so which is called as neo-Mendelism. So these Mendelism, it is divided into two category. So in that two category, first one is intragenic interaction. Yes, first one is intragenic interactions. Yes, and after that second one is, that is the intergenic. Yes, intergenic interaction. So what is this? Yes, listen. Yes, here the two means this neo-Mendelism. Actually here lot of type is there, but these types they are under two headings. First one is intragenic interaction and second one is intergenic interaction. Okay, so what is this? So intragenic means what? Occurs between the alleles of same gene. Yes, occurs between alleles of same gene. So it is occur between the same, that is the gene. Same gene of alleles means here these means this intragenic interaction, it is present between the alleles of same gene. Yes, it is present between the alleles of same gene. Alleles of same gene. जो alleles होते हैं, what is the alleles? Two or more than two alternative form of gene, which is called as alleles. Okay, so these alleles of same gene, एक ही जीन के alleles जो होते हैं उनके बीच में जो interaction होता है उसे क्या कहा है? Intragenic interaction. Yes, which is called as intragenic interaction. Yes, and in this the example is, it is very important. Actually हमें जो यही example ही देखने हैं. So which are the example? First one is incomplete dominancy. Yes, first one is incomplete dominancy. Second one is, that is a codominancy. Codominancy. And after that third one is, that is a multiple allele. Multiple
अलेल. So these are the 3 example and यही example हमें नियोमेंडलिज्म में देखने हैं. Yes, लेकिन ये याद रखिए. So these are the example of intragenic because on this the question is asking. For example, question is asking like that incomplete dominance is a type of intragenic or intergenic. So it is a type of intragenic. What is intragenic? Alleles of same gene. So here the interaction present between the alleles of same gene, so which is called as intragenic interaction. Example is incomplete dominancy, second one is codominancy, and third one is multiple alleles. Okay, so these are the intragenic. So what is mean by intergenic? So occurs between the alleles of different gene present on the same or different chromosome. Yes, it is occurs between the alleles of different gene. Here the different gene is present. Yes, here the different gene is present. Here the only the same gene is present. Here the different gene, different gene. So on that different gene, so they are present on same or different chromosome. Whether they are present on the same or different chromosome. So which is called as the intragenic interaction. What is intragenic interaction? So actually they are present in the different gene or different allele of same और डिफरेंट दैट इज द क्रोमोजोम. जो क्रोमोजोम होते हैं ये सिर्फ ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है जो एग्जाम्पल है इसके है या इसके, इसीलिए ये बताना है. वैसे इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका, लेकिन ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है ये पूछा जा चुका है, वही ध्यान में रखिए. सो इंट्राजेनिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है सी हियर. सो प्लियोट्रॉपी, second one is polygenes. So after that third one is epistatis, supplementary and complementary genes, supplementary and complementary gene. Okay, etc. Okay, listen here. इंट्राजेनिक के जो एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन, epistatis, supplementary and complementary genes. Okay, so out of that only pleiotropy and polygenes. So these two example in our syllabus. Okay, ये प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीन है, यही एग्जाम्पल हमारे इसमें है. सो वन बाय वन जो है हम देखेंगे अब कौन कौन से, यानी हमें यहाँ पे क्या स्टडी करने, कौन से नियोमेंडेलियन की स्टडी करने की है. फर्स्ट वन इज दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, सेकंड वन इज कोडोमिनेंसी, थर्ड वन इज मल्टीपल अलेल, फोर्थ वन इज प्लियोट्रॉपी एंड फिफ्थ वन इज पॉलीजीन. सो ये 5 नियोमेंडेलियन की जो यहाँ पे हमें स्टडी करने की, क्योंकि जो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड एक्सप्लेन किया उसके हेल्प से जो लॉ एक्सप्लेन किए उसमें थोड़े ड्रॉबैक्स थे, वही ड्रॉबैक करेक्शन करके ये जो है नियोमेंडेलियन कंसेप्ट दिए हैं. एंड इन दिस नियोमेंडेलियन कंसेप्ट वी आर स्टडी द 5 एग्जाम्पल. आउट ऑफ दिस 5 एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, second one is codominancy, third one is multiple allele, fourth one is pleiotropy and fifth one is polygene. सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान रखिए. So these 3 that is the incomplete, codominancy and multiple allele. So these are the example of intragenic, whereas pleiotropy and polygene, so these are the example of intergenic. यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, सो आफ्टर दैट सो वन बाय वन हम जो है देखने वाले हैं. इसमें से फर्स्ट है दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. कौन सा है पहला? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. देखिए इसके नाम में ही एक है क्या, इनकम्प्लीट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट? यानी नॉट कंप्लीट. सो नॉट कंप्लीट विच इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट. सो व्हाट इज दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी? Here listen now, both the alleles of an allelomorphic pair express them partially. What I am talking, listen. Yes, क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? Both the alleles of an allelomorphic pair, जो दो
जो जीन्स होते हैं, आउट ऑफ these पेयर्स एक्सप्रेस देम in F1 generation, which is a partially. Yes, partially. What is mean by partially? Partially का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर. यस, पार्शियली को और हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट, बीच में का. यस, इंटरमीडिएट यानी बीच में का. इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने इसके पहले जो देखा है मोनोहाइब्रिड. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, cross between two pure parents in which consisting one contrasting character. So after that there is a formation of F1. F1 में क्या आता था? F1 में hybrid आता था, लेकिन वो dominant आता था. Yes, one is dominant and one is recessive. But here in this incomplete dominancy, whatever may be the F1 is formed. So these F1, so here in this F1, so they get formed partially or intermediate. Yes, they get partially or intermediate. सो व्हाट इज दिस? अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो हियर वी आर टेकन द एग्जांपल ऑफ दैट इज हियर दैट इज अ मिराबिलस जल्पा. इट इज अ वन प्लांट, मिराबिलिस जल्पा. Yes, Mirabilis jalpa. So yes, this is one plant. So which is also called as 4 o'clock plant. इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है. आप बोलेंगे इसे ऐसे क्यों कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पे ऐसे क्लियरली नहीं दिया, ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखिए, मिराबिलस जल्पा इसे 4 o'clock प्लांट ऐसे भी कहा जाता है. यस, क्या है एग्जाम्पल? देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया है, रेड फ्लावर, इट इज क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर. रेड फ्लावर, ये प्लांट है, उसके रेड फ्लावर इज क्रॉस विथ दैट इज द व्हाइट फ्लावर. यस, दीज आर द पेरेंट्स. अभी जीनोटाइप क्या होंगे? देखिए, रेड फ्लावर के जीनोटाइप क्या होंगे? दैट इज अ कैपिटल आर. व्हाइट की क्या है? दैट इज द स्मॉल आर. व्हाट इज दिस? दीज आर द जीनोटाइप. दिखाई दे रहा है आपको? यस, दीज आर द जीनोटाइप. सो आफ्टर दैट, सो फ्रॉम दिस, दो सेम है, इसकी वजह से एक आ जाएगा, दैट इज अ कैपिटल आर. दोनों सेम है, इसकी वजह से एक आ जाएगा, दैट इज द स्मॉल आर. सो हियर F1 is capital R, small r. So what is this? These are the F1 generation. And what is this? These are the gamete. ये अब हमेशा लिखने का, आपको ये हमेशा लिखने का है. Yes, these are the gametes. Okay, so these are the F1 generation. What is this F1? That is the capital R, small r. What is this capital R, small r? ये capital R, small r क्या है? Yes. सो व्हाट इज दिस? आप बोलेंगे ये रेड फ्लावर है. सॉरी, बट नॉट हियर रेड फ्लावर. यही बोलना चाहती हूं मैं. दीज आर नॉट रेड फ्लावर. यस, सो कैपिटल आर, स्मॉल आर. सो हियर द पार्शियली मीन्स इंटरमीडिएट कैरेक्टर. इट इज नॉट रेड, इट इज नॉट व्हाइट. सो दोनों के बीच में का जो कलर है, अभी कौन सा आएगा? रेड. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, ये रेड कलर में अगर आपने व्हाइट कलर मिक्स किया तो कौन सा कलर अपीयर होता है? यस, कौन सा कलर अपीयर होता है? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द पिंक कलर. Actually, according to the Mendel, here these are the red color, but in some flower or in some plant, so not only contrasting character is present, intermediate character is also present. So that's why such problem is created, and here which is called as a neo-Mendelian concept. And in that neo-Mendelian concept, here the first one is incomplete dominancy. Now आपको समझ में आ रहा है what is incomplete dominancy? Incomplete dominancy means here both the allele of allelomorphic pair, so they get appear partially in F1 generation. They get appear partially. Partially means intermediate. One is not dominant over the another one. Means here
कोई भी डोमिनेंट नहीं और कोई भी रिसेसिव नहीं, एक डोमिनेंट नहीं है तो दूसरा रिसेसिव नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है एंड दिस इंटरमीडिएट कैरेक्टर यस सो विच इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ओके, सो आफ्टर दैट अपनी अगली स्टेप क्या होती थी, F1 इज क्रॉसेस विथ F1। सो व्हाट इज दिस F1? दैट इज अ कैपिटल आर स्मॉल आर। व्हाट इज दिस? कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, अभी हम यहाँ पे चेकर्ड बोर्ड ही बनाते हैं। यस, चेकर बोर्ड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक मेल और एक फीमेल, यानी ये पेरेंट्स, कौन सा भी एक मेल रहता है, कौन सा भी एक फीमेल रहता है, ये सिंबल है मेल और फीमेल के। यस, आफ्टर दैट हियर द कैपिटल आर एंड हियर द स्मॉल आर। यस, हियर द कैपिटल आर एंड हियर द स्मॉल आर। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। यस, हियर कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे हमने क्रॉसिंग की चेकर विद द हेल्प ऑफ चेकर्ड बोर्ड। सो वी आर क्रॉसिंग हियर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट सो व्हाट इज दिस? दीज आर द F2 जनरेशन। क्या है ये F2 जनरेशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे अभी फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो यानी क्या? एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं, वेदर दे आर लुकिंग लाइक रेड, व्हाइट और पिंक, यही हमें लिखना है। देखिए अभी कैपिटल आर क्या है ये? सो दीज आर द रेड। यस, दीज आर द रेड, कैपिटल आर। ओके, कितने हैं रेड? ओनली 1 है। सो आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है ये? पिंक कलर है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाट इज दिस? दीज आर द पिंक कलर। यस, पिंक कलर। कितने हैं पिंक कलर? 1 और 2। कितने आ गए? 1 और 2 आ गए। ओके, and after that the last one is small r। what is this? small r क्या है? yes, so these are the white flower। yes, these are the white flower। कितने हैं ये white flower? only 1 means here phenotypic ratio क्या आ गया? phenotypic ratio 1:2:1। Yes, what is the phenotypic ratio? 1:2:1। Actually in monohybrid cross में क्या था? phenotypic ratio 3:1। But here instead of 3:1, here the phenotypic ratio is 1:2:1। Okay, so these are the phenotypic ratio। So what about the genotypic ratio? genotypic ratio क्या है? यहाँ पे देखिए जीनोटिपिक रेशियो यानी क्या? जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन। उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन होता है वो हमें देखना है। देखिए यहाँ पे जीनोटिपिक, सो कैपिटल आर कितने हैं? कैपिटल आर देखिए कितने हैं? सिर्फ 1 है। आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? देखिए 1 और 2। कितने हैं? 2 है। एंड एट लास्ट स्मॉल आर कितने हैं? सिर्फ 1 है। यस, कैपिटल आर देखिए सिर्फ 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? देखिए 2 है। एंड स्मॉल आर कितने हैं? 1 है। यानी जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। यानी इसका मतलब क्या है? सो हियर फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। बोथ रेशियो आर सेम। बोथ रेशियो क्या है? सेम है। किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। यस, समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखिए हमने। व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी? हियर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हियर that is in incomplete dominancy both the allele of an allelomorphic pair express them partially or intermediate, means in F1 generation so intermediate character is appear and which is called as incomplete dominancy।
हियर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्या मतलब क्या होता है, नॉट कंप्लीट, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई विच इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. हियर वी आर टेकन वन एग्जांपल, दैट इज अ मिराबिलस जल्पा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock plant. So here that is a red flower, it is crosses with white flower. red flower के जीनोटाइप है कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर की जीनोटाइप है स्मॉल आर. देखिए क्रॉस किया, सो इन F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर, इट इज नॉट रेड. लिसन, इट इज नॉट अ रेड एक्चुअली. जो मोनोहाइब्रिड, अकॉर्डिंग टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये रेड आना चाहिए, लेकिन आया क्या, नहीं. सो दीज आर द पिंक कलर अपीयर इन F1 जनरेशन. आफ्टर दैट F1 इज क्रॉसेस विथ F1 से क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. क्या गैमेट है इसके, वन है कैपिटल आर एंड दूसरा है स्मॉल आर. उसकी क्रॉसिंग की, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. सो हियर द फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालते हैं, ओनली द एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखना है वेदर दीज आर द रेड, व्हाइट और पिंक. सो रेड कितने, सिर्फ एक है, पिंक कितने हैं, 2 है, एंड व्हाइट कितने आ गए, 1 आ गया. ओके, सो फिनोटाइपिक रेशो इज 1:2:1. वेयर एज जेनोटाइपिक रेशो, सो जेनेटिक ओनली, यहाँ पे हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. क्या है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ कैपिटल आर, हियर द 1. सो कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर द 2, एंड स्मॉल आर, हियर द 1. एक्चुअली ये हम यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पे एक्चुअली ये दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो. रेड 1 है, पिंक 2 है, व्हाइट 1 है, यानी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1. इट मीन्स दैट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम. ओके, सो दिस इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. ओके, so after that second one is that is the codominancy. Now the second example is codominancy. कोडोमिनेंस. ओके, सो देखिए कोडोमिनेंसी. सो व्हाट इज दिस कोडोमिनेंस. ओके, सियर कोऑपरेट, को यानी क्या, उसको एक कोऑपरेट, हम एक वर्ड यूज करते हैं कोऑपरेट. व्हाट इज द कोऑपरेट, कोऑपरेट करना यानी क्या, एक दूसरे को हेल्प करना. ओके, सो यही ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी एग्जांपल ये या कोई भी कंसेप्ट हो, उसका अगर हम उसके नेम को अगर ब्रेक करेंगे तो उसका मतलब आता है. ओके, सो जैसे यहाँ पे हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, हमने देखा इनकम्प्लीट यानी नॉट कंप्लीट, यानी पार्शियली, इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज अपीयर. ओके, सो व्हाट इज द कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी मीन्स बोथ कैरेक्टर्स आर अपीयर. ओके, सो व्हाट इज दिस कोडोमिनेंसी, हियर इन दिस कोडोमिनेंसी हियर बोथ द alleles of an allelomorphic pair express them इक्वली इन F1 हाइब्रिड्स. यस, हियर जैसे हमने इनकम्प्लीट में क्या देखा, पार्शियली, एंड हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज द इक्वली. मीन्स वन इज नॉट डोमिनेंट, अदर इज नॉट रिसेसिव. बोथ कैरेक्टर, ये दो जो पेरेंट्स है, ये दो पेरेंट्स, ये 50% आएगा, ये 50% आए, यानी F1 में जो है जो कैरेक्टर अपीयर होने वाले हैं वो कैसे है, दैट इज द इक्वली. यस, दैट इज द इक्वली, एंड सच टाइप ऑफ द डोमिनेंसी विच इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंसी. ध्यान में दीजिए, कोडोमिनेंसी, व्हाट इज द कोडोमिनेंसी, इन दिस कोडोमिनेंसी हियर बोथ द alleles of an allelomorphic pair express them दैट इज द इक्वली. यहाँ पे पार्शियली था, यहाँ पे इक्वली है, यानी ये जो दो पेरेंट्स है, ये दो पेरेंट्स में यहाँ इसमें से 50 कैरेक्टर आएंगे और इसमें से 50 कैरेक्टर है, यानी इक्वली कैरेक्टर आएंगे इन F1 जनरेशन, एंड विच इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंसी. यस, विच इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंसी. जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कौन सा एग्जाम्पल देखा था, दैट इज द Mirabilis jalpa. So here we are taken the example of that is the coat color of cattle. Yes, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं. Yes, here the example is coat color in cattle. Coat color in cattle. यानी क्या, जो कैटल है
यस जो कैटल है उसमें से जो कैटल हमने कैटल के जो कोट कलर है यानी जो गाय बैल रहते हैं ना उसका एग्जाम्पल है, उसका जो कलर है उसके स्किन का जो कलर है सो विच इज कॉल्ड एज कोट कलर इन कैटल. ओके सो हियर वी आर टेकन दिस एग्जाम्पल कोट कलर इन कैटल. जो गाय बैल उनका जो कलर होता है उनके स्किन का जो कलर होता है उसे क्या कहा जाता है कोट कलर इन कैटल. सो हियर टेकन द एग्जाम्पल. Here red cattle is crosses with white cattle. Yes, red यानी बिल्कुल रेड कलर के नहीं रहते, ये जो ब्राउन वगैरह कलर के रहते ना उसे रेड कहा जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो गया. रेड कलर कैटल इज क्रॉसेस विथ व्हाइट कलर कैटल. Yes, what is this? These are the parents. What are the genotype? That is the capital R genotype. ये हमेशा याद रखने का. अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा. व्हाइट आप बोलेंगे व्हाइट का स्मॉल आर आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे व्हाइट का आ जाएगा कैपिटल W. व्हाई सच थिंग इज प्रेजेंट बिकॉज यहाँ पे जो है जैसे मेंडल में जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सो सच थिंग इज प्रेजेंट. बट हियर वही मैं यहाँ पे बात करनी न्यू मेंडेलियम. न्यू का मतलब न्यू होता है. मेंडल के कंसेप्ट में न्यू जो कंसेप्ट है यहाँ पे रखे गए हैं. दैट्स वाई हियर वन इज रेड so another is white. So here capital R capital, these are the dominant, but it is not a recessive. One is not dominant, so other is not recessive. So that's why here W capital W. Okay, so after that the gamete क्या आएगी गैमेट यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे W. ओके सो हियर क्रॉसिंग करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएंगे RW. सो दिस इज अ F1 जनरेशन. सो व्हाट इज दिस RW? वेदर इट इज अ रेड और वेदर इट इज अ व्हाइट? नो. देखिए हमने क्या कहा है यहाँ पे कोडोमिनेंसी में क्या होता है इक्वली कैरेक्टर आते हैं. यस हियर द इक्वली कैरेक्टर इज प्रेजेंट. इक्वली मीन्स अभी रेड हाफ आ जाएगा और व्हाइट हाफ आ जाएगा. यस आपने देखे होंगे बैल में गाय में ये जो है दोनों कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं. पूरी रेड कलर की यानी ब्राउन कलर के भी गाय बैल नहीं रहते और व्हाइट कलर दोनों मिक्स होते. सो दिस RW सो विच इज कॉल्ड एज रोन कलर. यहाँ पे इससे क्या कहा जाता है रोन कलर कहा जाता है. समझ में आ रहा है रोन का मतलब क्या है? सो रोन का मतलब है इस बैल या गाय जो भी है सो इस गाय बैल में रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है. मैं आपको बुक में उसकी तस्वीर दिखाऊंगी ये खत्म होने के बाद. देखिए पहले हम ये समझ लेंगे बाद में मैं उसकी जो तस्वीर है बुक में जो है मैं आपको दिखाऊंगी, आपके समझ में आएगा. यानी रोन कलर क्या होता है? रोन कलर में रेड एज वेल एज व्हाइट बोथ कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट एंड विच इज कॉल्ड एज रोन कलर. क्या कहा जाता है उसे? रोन कलर कहा जाता है. अभी अगली स्टेप है F1 इज क्रॉसेस विथ F1. So what is F1? F1 क्या है? So what is F1? Yes, F1 is capital R, capital W. Yes, it is crosses with capital R, capital W. So here the gamete is capital R, capital W and here the gamete is capital R, capital W. Yes, यहाँ पे हम चेकर बोर्ड करेंगे. चेकर बोर्ड देखे एक मेल होगा तो अगला फीमेल होगा. कौन क्या गैमेट है? कैपिटल R कैपिटल W. यहाँ पे क्या है? कैपिटल R कैपिटल W. क्रॉसिंग करेंगे यहाँ पे हम. यस क्रॉसिंग करेंगे यहाँ पे कैपिटल R हियर कैपिटल R कैपिटल W. यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल W. यहाँ पे W. यस so these are the cross. So what is this? These are the F2 generation. Yes, F2 generation. अभी हम इसका देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो. समझ में आया कैसे किया? कैपिटल R कैपिटल W
capital R, capital W, and capital W, capital W. Oh yes, after that here the phenotypic ratio. बाहर से कैसे दिखते हैं हमें? अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, पहला है रेड कलर, दूसरा है व्हाइट कलर एंड तीसरा कौन सा है? रोन कलर. सो अभी देखेंगे रेड कलर के कितने हैं. रेड कलर के देखिए कैपिटल आर, दीज आर द रेड. यस, दूसरे है अभी नहीं. सो कितने आ गए? 1 आ गया. ओके, आफ्टर दैट कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू यानी कौन सा कलर होता है? रोन कलर. कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, इट इज अ रोन कलर. यस, कितने हैं रोन कलर? 1 और 2. कितने आ गए? 2 आ गए. एंड आफ्टर दैट कैपिटल डब्ल्यू यानी कौन सा कलर है? ये व्हाइट कलर है. व्हाइट कलर है. कितने आ गए व्हाइट कलर के? सिर्फ 1 है. यानी रेड आ गए 2, रोन आ गए 2 और व्हाइट आ गया 1. सो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. यस, 1:2:1. यस. सो आफ्टर दैट जीनोटिपिक रेशियो. So after that जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो यानी अभी इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या है, कैसा है, वो देखेंगे. कैपिटल आर कितने हैं? देखिए कितने हैं? सिर्फ 1 है. सिर्फ 1 है. आफ्टर दैट कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कितने हैं? देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2 है. एंड आफ्टर दैट कैपिटल डब्ल्यू कितने हैं? सिर्फ 1 है. इसका मतलब क्या? जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1. देखिए बहुत बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में वो कंफ्यूज होते. तो ध्यान में दीजिए, फिनोटिपिक रेशियो यानी जो बाहर से है वो कैसे दिखते हैं, एंड जीनोटिपिक रेशियो यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? रेड यानी बाहर से कैसे दिखते हैं? रेड दिखते हैं. यहाँ पे 3 कलर है, रेड व्हाइट रोन. रेड कलर कितने हैं? सिर्फ 1 है. रोन कलर देखिए यहाँ पे रोन कलर के 2 है और व्हाइट का 1 है. सो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. वेयर एज जीनोटिपिक रेशियो यानी ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लिखते हैं ना कैपिटल आर कैपिटल, ये विच इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. सो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल आर सो इट इज 1. कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इट इज 2 and capital W it is 1. It means that like that of the incomplete dominancy, in codominancy also phenotypic as well as genotypic ratio is 1:2:1. जैसे हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में देखा था कि रेशियो क्या था? 1:2:1. both phenotypic as well as genotypic ratio. So here in codominancy also phenotypic as well as genotypic ratio is 1:2:1. In both that is a new Mendelian concept, that is the incomplete and codominancy, here both ratio are same. What so इसमें क्या difference है? फिर इसमें क्या difference है? ये both are same. So what are the difference between incomplete dominancy and codominancy? See, it is very important point. In codominancy, characters are equally appear. Yes, character क्या होते? Equally appear होते. Whereas in incomplete dominancy, जो incomplete dominancy देखी थी हमने, yes, in incomplete dominancy, so here the characters are partially. Yes, characters are partially यानी intermediate characters are appear, and here क्या होता है? Equally characters are appear. So this is a basic difference between incomplete dominancy and कोडोमिनेंसी. समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में? कोडोमिनेंसी में F1 में कैरेक्टर इक्वली अपीयर होते हैं, एंड वेयर एज इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कैरेक्टर्स आर partially appear. Characters are partially appear. So this is the basic difference between incomplete dominancy and codominancy. समझ में आ रहा है? And after that third last example of these, that is intragenic, so that is the multiple allele. Yes, last example है, third example है, that is the multiple alleles. So उसके पहले मुझे आपको वो कलर दिखाना था. 1 मिनट मैं आपको कलर दिखाऊंगी. रोन कलर क्या होता है? यस, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट इज द रोन कलर. यस, व्हाट इज द रोन कलर. देखिए यहाँ पे सबको दिख रहा है अभी व्हाट इज दिस रोन कलर. ये रोन कलर क्या होता है देखा आपने सबने? यस, ऐसे गाय बैल देखे आपने
कि जिसमें ये जो होते हैं, सो दिस इज द रोन कलर। यस, ये इस रोन कलर में क्या होता है, ये व्हाइट या फिर ब्राउन, दोनों भी रोन कलर है। इसमें कलर सिर्फ इसमें व्हाइट ज्यादा है तो इसमें ब्राउन ज्यादा है, बट बोथ आर द रोन कलर। यस, ये देखिए रेड यानी ब्राउन, व्हाइट कलर। सो इसमें क्रॉसिंग होने के बाद ऐसे कलर जो अपीयर होते हैं उसे रोन कलर कहा जाता है। आपने देखे होंगे बहुत हाइब्रिड जो होते हैं स्पेशली ऐसे होते हैं, और ऐसे भी कौन से भी गाय बैल जो है ये ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। सो सच कलर विच इज कॉल्ड एज रोन कलर। आ गया समझ में आपको? यस, after that is the multiple alleles. So what is this multiple array? So listen now, third example, more than two alternative form of a gene in a population occupying the same locus on a chromosomes or its homologous are known as multiple alleles. What is multiple? Multiple का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। multiple का बहुत सारे, sorry here not color, multiple alleles, sorry, multiple alleles. Yes, multiple allele टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सो यहाँ पे बहुत सारे, मल्टीपल यानी बहुत सारे अलेल रहते हैं, एंड दीज अलेल यानी कैरेक्टर एक ही रहता है, लेकिन इसको कंट्रोल यानी एक ही कैरेक्टर, लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत होते हैं। सो सच टाइप ऑफ द अलेल्स, सो विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलेल्स। यस, जब मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगी तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मल्टीपल अलेल्स। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। यस, ऑक्युपाइंग इन सेम, that is a locus on a chromosome, so which is called as multiple alleles. Here first of all I am taking one example, after that you understood what is the multiple alleles. Yes, here I am given the example, that is a Drosophila. क्या है ये ड्रोसोफिलिया? What is this Drosophila? It is one type of insect. ये जिसे हम ड्रोसोफिलिया, ग्रॉसोपर जैसा एक जो इंसेक्ट है, दैट इज नाकतोड़ा जिसे हम कहते हैं। सो उसके जैसा जो एक इंसेक्ट है विच इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिलिया। सो उसके जो विंग है, यस, ड्रोसोफिलिया के जो विंग है, विंग यानी उसके पंख जो होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें वेरिएशन है, अलग अलग तरह के ये जो ड्रोसोफिलिया अलग अलग तरह के जो है उसके पंख होते हैं। सो विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलेल्स। सो हियर डायरेक्टली आई एम शोन, बिकॉज आई एम नॉट ड्रॉइंग द फिगर, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ऑल दीज आर द ड्रोसोफिलिया। ओके, सो इन दैट ड्रोसोफिलिया यहाँ पे देखिए नॉर्मल विंग है, ये फिनोटाइप यानी बाहर से कैसे दिखते हैं, इसके जो विंग है नॉर्मल है। सो उसका जीनोटाइप है VG प्लस निक विंग मीन्स क्या मतलब होता है इसके? थोड़े अलग। ये देखिए, आप बोलेंगे ये तो सेम दिख रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये जो आप अगर उसको केयरफुली देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें जो है डिफरेंस आता है। सो दैट्स व्हाई हियर डिफरेंट नेम इज गिवन, एंड अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप देयर जीनोटाइप आल्सो चेंजेस। यहाँ पे ध्यान रखिए, निक विंग सो VGNI, नॉच विंग सो हियर VGNO, स्ट्रैप विंग हियर द VGST, एंड वेस्टिजियल विंग दैट इज अ VG। यहाँ पे देखिए विंग इसको दिखाई भी नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, ये फिगर देखिए आप, और उसके हिसाब से जो है फिनोटाइप के हिसाब से इसके जीनोटाइप चेंज होते हैं। एक्चुअली इट इज अ वन कैरेक्टर। व्हाट इज द कैरेक्टर? दैट इज अ विंग ऑफ द ड्रोसोफिलिया। यस, ये विंग जो है मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। यानी ये जो ड्रोसोफिलिया है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें सेम लोकस में ऑक्युपाइंग होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज अ जीनोटाइप देयर फिनोटाइप इज चेंजेस। इफ द फिनोटाइप इज VG, सो जीनोटाइप इज नॉर्मल विंग। इफ द फिनोटाइप इज VG, देन इट इज अ वेस्टिजियल विंग। समझ में आ रहा है या नहीं? यस, ये मल्टीपल अलेल का एग्जाम्पल है। मल्टीपल यानी बहुत सारे, यानी एक कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसमें जो है वैरायटी बहुत है। सो विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलेल्स। सो अनदर एग्जाम्पल दैट इज अ ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप, अपना जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होता है, देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप है हमारे। यस,
First one is A blood group, after that B blood group, after that AB blood group, and after that O blood group. Yes, so these are the phenotype. Yes, these are the phenotype. ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसका एग्जांपल देख रहे हैं हम. एक देखे या ड्रोसोफिलिया का, ये मैंने जो बुक में दिखाया आपको कि विंग जो है उसके अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप. जीनोटाइप इज ऑल्सो चेंजेस. सो हियर द ब्लड ग्रुप इट इज अ वन एग्जाम्पल. बट इतनी जो पॉपुलेशन है सबका ब्लड ग्रुप सेम होता है क्या? नहीं होता. हर एक का जो है अपना अपना अलग ब्लड ग्रुप होता है. यस, सो अकॉर्डिंग टू दैट इज अ जीनोटाइप. अभी ए जिनका ब्लड ग्रुप है उनके अंदर कौन से जीनोटाइप होते हैं? सो ध्यान में दीजिए, उनके अंदर IA और IA या फिर IA एंड A एक जो होता है I0 किंवा ऐसे ही रहते हैं. यस, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान में दीजिए. यस, हियर वन एग्जांपल इज गिवन. एक जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है? सो दैट इज द ब्लड ग्रुप. इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं 4 ब्लड ग्रुप होते हैं. कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? दैट इज द ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, AB, एंड उसके बाद क्या होता है? दैट इज द कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? दैट इज द ब्लड ग्रुप O. ओके, सो अभी इसके जो फिनोटाइप जीनोटाइप है, ये जो जीनोटाइप होते हैं, यस, ए जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके जीनोटाइप क्या है? IA, यानी ये जो ऐसे लिखा जाता है उसको IA या फिर IA, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं, ओनली I. या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सॉरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं IA एंड दूसरा जो होता है स्मॉल I आता है. यस, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव वन. जिनका ब्लड ग्रुप ये है उनके अंदर ये जीनोटाइप होते हैं, या फिर जिनके अंदर जीनोटाइप ये होते हैं उनका ब्लड क्या होता है? ए होता है. वैसे ही ब्लड ग्रुप बी, सो उनके क्या जीनोटाइप होते हैं? IB या फिर IB या फिर I स्मॉल. समझ में आ रहा है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में. ये यहाँ पे ऐसे बॉक्स दिया था, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिए थे, यहाँ पे जीनोटाइप लिखने थे, या फिर जीनोटाइप दिए थे, यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप लिखना था. सो ध्यान से देखिए जीनोटाइप. सो हियर IA या फिर IA, B का IB या फिर IB स्मॉल I. AB का क्या होगा? फिर एक होगा IA एंड दूसरा होगा IB. यही जीनोटाइप होंगे. जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनके जीनोटाइप IB है. एंड लास्ट वन इज जिनका ब्लड ग्रुप O है, उनके अंदर स्मॉल I जीनोटाइप होते हैं. समझ में आए? एंड अकॉर्डिंग टू दिस जीनोटाइप अवर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड. ये जो जीनोटाइप है उसके हिसाब से अपना ब्लड ग्रुप होता है. जिनके अंदर I होता है, स्मॉल I उनका ब्लड ग्रुप O होता है. जिनके अंदर IB होता है उनका ब्लड ग्रुप A होता है. जिनके अंदर IB है उनका ब्लड ग्रुप AB होता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलेल्स. व्हाट इज द मल्टीपल अलेल्स? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम. यानी बहुत सारे पॉपुलेशन रहती है, इन पॉपुलेशन में ये जो है इट गेट ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम, जीन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस. ये बहुत सारी, इसकी वजह से जो डिफरेंट लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग होता है. ओके, सो दीज 3 आर द एग्जाम्पल. ये 3 जो है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. कौन कौन से देखे? इनकम्प्लीट देखा. सो आफ्टर दैट को डोमिनेंसी एंड आफ्टर दैट मल्टीपल अलेल. सो ये 3 जो है किसके एग्जाम्पल है? तीनों भी. दैट इज इंट्रा और इंटरजेनिक. यस, विच आर द किसके एग्जाम्पल है ये तीनों? दैट इज द इंट्राजेनिक. ओके, समझ में आ रहा है? इंट्राजेनिक. ओके, समझ में आया? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी. ओके, थैंक यू.